Hello guys, today's new topic is alcohol, all about alcohols, its classification, preparation, reactions, everything. So the most of the chapter is based on monohydric alcohols. Monohydric alcohols everyone is aware of, where it has one OH group represented by the formula CnH2n plus 2O, similar to ether. Therefore it is a functional isomer of ether. ये आपने 11 में देखा है. Or it can be CnH2n plus 1 OH, or ROH is the representation. R stands for the alkyl group. Now you have three types with respect to the OH attached to carbon atom: primary, secondary, tertiary. Primary alcohol, secondary, tertiary, ये भी मैंने बता चुका हूँ पहले. Then classification can also be done on the depending upon the OH atoms attached to the hybridized carbon. Can be saturated, where OH attached to sp3 hybridized carbon atom. वही ROH जिसको बोलते हैं, primary, secondary, tertiary. It can be allylic, where the OH attached to the allylic carbon. Allyl आपको ग्रुप याद होगा. Allyl group is CH2 double bond CH2 allyl. तो ये allylic position हो गया. इसी पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है OH का. तो इफ यू अटैच OH, इट बिकम्स अ allylic alcohol. इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी. आप यहाँ पर एक और एक C डाल दो, OH डाल दो, सेकेंडरी बन जाएगा. बेंजाइलिक, where OH attached to sp3 hybridized carbon, which is attached to sp2 hybridized of the ring. Benzyl group चाहिए, CCH5CH2 group is benzyl group. OH उससे attach है तो benzylic alcohol हो गया. There can be a cycloalkanol, OH attached to the cycloalkane ring, मतलब वो ring का carbon sp3 होगा. Phenol, OH attached to aromatic ring. Again carbon is sp2. Vinyl group is CH2 double bond CH, जिससे OH attach है. Vinyl alcohol. Ethanol, carbon is sp2. They can be polyhydric alcohol, dihydric 2OH on the adjacent carbon. मैं vicinal बना रहा हूँ, geminal तो unstable होता है. If you remember that, it has 2OH group. They are called as glycols. Then you can have a trihydric alcohol, glycerol, propane 1, 2, 3 triol. Hexahydric, which is called as sorbitol, 6OH in a series. So alcohols can be classified on the basis of the carbon atom to which the OH is attached, or on the basis of number of OH groups. ये सब चीज़ें हम आप लोगों को ऑलरेडी पता है. You know all this stuff right from the classification we have done. It is similar to the alkyl halides. Let's move on to the preparations of alcohol. The first preparation of alcohol you have seen in alkyl halide is the SN1 SN2 reaction, alkaline hydrolysis of alkyl halide. RX reacts with NaOH, तो X और Na निकल जाता है. KOH होगा तो X और K निकल जाएगा. OH comes with R to form ROH, nucleophilic substitution, और with moist Ag2O. Second, आपने hydration of alkenes देखा है. This reaction is done in alkenes, where alkene is reacted with cold concentrated H2SO4. OSO3H goes to one carbon, H goes to the another carbon atom. मार्कोनिक से ऐड होता है अगर ये अनसिमेट्रिकल होगा, मतलब OSO3H goes to carbon having less. फिर उसको बॉयल करोगे तो OSO3H एंड H निकल जाएगा. OH कम टू द प्लेस. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है. कार्बोकटायन फॉर्मेशन मैंने ये सब डिस्कस किया है अल्कीन्स में. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये भी अल्कीन्स में किया है, जहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलता है. फर्स्ट स्टेप में अल्कीन रिएक्ट्स विद B2H6 and THF to form trialkyl borate. Then it is been oxidized by using hydrogen peroxide. तो OH and B, H3BO3 निकल जाएगा, and 3OH attached to 3 moles of RCH2CH2. और याद रखना इसमें OH माइनस आयंस इनडायरेक्ट एडिशन है ना वाटर का. तो मैंने वहाँ पर ये बताया था कि OH माइनस आयंस गिव्स अ एंटी प्रोडक्ट, गोज टू अ कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन. हाइड्रोबोरेशन गिव्स एंटी प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल, मतलब ये प्रोपेन 2 ऑल देगा तो ये प्रोपेन 1 ऑल देगा विद प्रोपीन. ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी अल्कीन्स में देखा है आपने, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, वेर अल्कीन में मर्क्यूरिक एसिटेट HgCOCH3, मर्क्यूरिक एसिटेट ट्वाइस, क्योंकि ये +2 रहता है मर्क्यूरी. तो HgOAC, 1 mole of OAC and Hg goes to 1 and OH goes to the another carbon. OH इधर किस पे जाएगा, कार्बन हैविंग लेस, मार्कोनिक फॉलो करता. देन यू रिड्यूस बाय NaBH4, तो हाइड्रोजन गोज टू CH2 और HgOAC का आयंस निकल जाता है. यू गेट अ अल्कोहल विद मार्कोनिक ऑफ. ये भी रिएक्शन अल्कीन्स में किया है. तो 3 reactions are covered in alkenes and 1 reaction is coming from alkyl halide SN1 SN2. Please go through that part, मैंने वो डिटेल में बताया. Next is hydrolysis of ester. Ester has RCOR formula. Hydrolysis मतलब इसको ब्रेक करना with the help of water.
you can do acid hydrolysis or you can do base hydrolysis. मतलब you can add small amount of acid or you can add a small amount of base to it. Alkaline hydrolysis या acid hydrolysis होगा. Borders को break करेगा. Why you add this acid and base? To accelerate the reaction. It catalyzes the reaction. So it breaks in such a manner. यहाँ से H plus निकल जाएगा, यहाँ से A part break हो जाएगा. So you get ROH and this OH goes to C. So you will get R C double bond O, OH plus R dash OH. You get a mixture of acid and alcohol. Like you take ethyl acetate. This is ethyl ethanoate. IUPAC नेम या ethyl acetate बोलो, वाटर से ऐड करो, ये यहाँ से ब्रेक कर दो. सिंपल है, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस चलेगा, जैसा भी हाइड्रोलिसिस करना. यू गेट CH3 COOH प्लस C2H5OH इथेनॉल. सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव्स एसिड एंड अल्कोहल. और वही एसिड एंड अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 ऐड करोगे तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा टू गिव एन एस्टर. दैट इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ओके, तो एस्टरिफिकेशन इज द रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस और वाइस वर्सा. Then you can do hydrolysis of ether. Ether is ROR. You break with water using dilute H2SO4. Very simple reaction. कहीं से भी आप break कर दो तो H goes to O, OH goes to R. So you will get ROH plus R dash OH. दो different R है तो you get a mixture of alcohol. If both the R is same, you get a same alcohol. For example, you take ethoxyethane, ether, hydrolyzed it. So you remove this. यहाँ से break कर दो तो this OH goes to CH2, H goes to O. So you get a product C2H5OH plus same C2H5OH, 2 moles. Now you take methoxyethane, ether, methoxyethane ना, मैं IUPAC पे डिस्कस कर रहा हूँ तो लिसन टू मी केयरफुली. methoxyethane देखो यहाँ से ब्रेक किया, H goes to O, O goes to C2H5, you get CH3OH methanol plus C2H5OH ethanol you get. Then you have anisole. Anisole is methoxybenzene. Again break करो, चलो break कर दिया मैंने यहाँ से. H goes to O, OH goes to CH3, so you will get CH3OH plus C6H5OH. Phenol and methanol मिल गया. So hydrolysis of ester, hydrolysis of ether. और अल्कीन से तीनों वाटर एडिशन मेथड है. वाटर एडिशन मेथड, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये दोनों में इनडायरेक्टली वाटर ऐड होता है. इसमें एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोबोरेशन में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिक. यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड प्लस RX विद NaOH. ये हम लोग ने कहा देखा था इन अल्काइल हैलाइड्स. एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड ईथर्स किया हम लोग ने. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन. द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपेरेशन इज एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड. ये केमिकल वापस आ गया, देखो अनस्टेबल केमिकल है. याद है आपको HNO2 इज अनस्टेबल. इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaNO2 and HCl. मैंने सिखाया था सैंडमेयर्स रिएक्शन में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ बेंजीन ऑन नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमाइन RNH2. तो प्राइमरी अमाइन पे नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा. तो व्हेन फर्स्ट यू टेक NaNO2 and HCl, मिक्स इट. अमाइंस को एक बीकर में लेना है, बीकर को रखना है फ्रीजिंग मिक्सचर में, वेदर टेम्परेचर शुड बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए कि व्हेन amine, primary amine react with nitrous acid, it forms a diazonium salt. Diazonium salt is highly unstable. but दो टाइप के diazonium salt होते हैं, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट और एक होता है अरीन डाइजोनियम सॉल्ट. अरीन डाइजोनियम सॉल्ट मैंने आपको बताया था एरोमेटिक्स में, विच इज स्लाइटली स्टेबल बिटवीन 0 to 5 डिग्री. ये तो बहुत कम स्टेबल है. ये जैसे ही फॉर्म होगा ये वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, OH आ जाएगा R पे, यू गेट ROH एंड N2 इज रिलीज. सो मतलब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यू विल गेट ROH. ये पार्ट यहाँ से ब्रेक करा दो, OH को यहाँ पर भेज दो, प्लस N2 गैस प्लस वाटर. सो दिस इज अ रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन. मतलब अगर मैंने इथाइल अमाइन विद नाइट्रस एसिड लिया तो सिंपल है, C2H5 डायरेक्टली नाइट्रस एसिड का क्या अटैच कर दो, OH प्लस N2 प्लस H2O. और ये देखो एरोमेटिक अमाइंस मैंने आपको बताया था कि टेक एरोमेटिक अमाइन एनालीन, प्राइमरी अमाइन, नाइट्रस एसिड, सो इट फॉर्म्स C6 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, C6 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट देखा था. फिर इसके रिएक्शंस देखे थे, CuCl, CuBr, दैट इज कॉल्ड ए सैंडमेयर्स रिएक्शन. अगर आपने सिर्फ CO और HCl लिया तो गेटामिन्स रिएक्शन था, याद होगा ये रिएक्शन मैंने बताया था. देन विद फ्लोरोबोरिक एसिड यू गेट अ हाइड्रोजन, या हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन था, इथेनॉल के साथ रिएक्शन था, बेंजीन मिल रहा था.
तो सेम डाइजोनियम क्लोराइड कैन बी स्टेबल बिटवीन 0 to 5 डिग्री. देन इट इज अबव 5 डिग्री, वाटर ऐड करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा. OH गो टू दिस कार्बन एटम, यू विल गेट अ फिनॉल इन दिस. सो RNH2 लिया तो ROH मिलेगा, CCH5NH2 लिया तो CCH5OH मिलेगा. बट याद रखना RNH2 में एक एक्सेप्शन केस है, वो है मिथाइल अमाइन CH3NH2. CH3NH2 whenever react with nitrous acid, either it forms dimethyl ether or it with excess of nitrous acid it forms methyl nitride CH3ONO. यहाँ का H निकल जाता है तो यू गेट CH3, यहाँ से एक H निकल जाएगा तो CH3ONO मिलेगा, मिथाइल नाइट्राइड. ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक्सेस के साथ मिथाइल नाइट्राइड, नॉर्मल के साथ में ईथर, बट इट नेवर गिव्स एल्कोहल. ठीक है. सो ArN2 प्लस याद रखना है स्लाइटली मोर स्टेबल देन RN2X माइनस. ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही. अराइन डाइजोनियम सॉल्ट, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट. So whenever a primary amine, what do you need to remember? Whenever a primary amine reacts with nitrous acid, it gives alcohol. Except methylamine, it gives ether and methyl nitride. और अगर एनालीन लिया मतलब एरोमेटिक अमाइन लिया तो वो क्या प्रोड्यूस करके देगा? फिनॉल प्रोड्यूस करके देगा. सिंपल है. मैकेनिज्म समझना है कि वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट ही बनाते हैं. ये रिएक्शन मैं बता चुका हूँ, सेम वही रिएक्शन इधर भी NaNO2NHCl वाला. Then next is reduction of carbonyl compound. Important reaction. Carbonyl compound can be aldehyde, can be ketone, can be acid, can be ester. तो कार्बोनिल कंपाउंड में पहले हम लोग अल्डिहाइड कीटोन लेते हैं. इनको रिड्यूस करना है. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट रिड्यूस करने के लिए रिक्वायर सर्टन रिड्यूसिंग एजेंट. सो यू कैन यूज सो मेनी रिड्यूसिंग एजेंट इन कार्बोनिल कंपाउंड. यू कैन यूज डायरेक्टली निकल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट, हीटेड 413 एड H2 गैस. सोडियम इथेनॉल सोल्यूशन में लिया तो वो नेसेंट हाइड्रोजन करेगा, ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं जिसको. और सोडियम अमालगम इन वाटर डाल दो, NaNHG इन वाटर, Na वाटर से रिएक्ट करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन, फिर नेसेंट हाइड्रोजन देगा. सोडियम हाइड्राइड डायरेक्ट हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा. दिस इज कॉल्ड एज डाजन रिडक्शन. डाजन मेथड नहीं है, डाजन मेथड वो है SOCl2 थायनिल क्लोराइड विद RX गिव्स यू RCl. वो भी एक डाजन मेथड है. ये डाजन रिडक्शन है, सोडियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट. और यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी H- ही ट्रांसफर करते हैं. बट वेन एवर यूज दिस केमिकल, साथ में एसिड हाइड्रोलिसिस करने का, मतलब वाटर के साथ थोड़ा एसिड ऐड करने का बाद में, ताकि कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर सके और रिएक्शन हो सके. एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑलवेज रिएक्ट इन ईथर. इसके लिए हमेशा इसका जो मीडियम होता है ना, वो हमेशा ईथर ही रखो, ड्राई ईथर रखो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करता है, ये चलेगा वाटर में, नॉट एन इशू. सो बेसिकली बोलना क्या है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया अबाउट दिस रिएक्शन? यू टेक अल्डिहाइड, यू कीटोन, you take any reducing agent, two nascent hydrogen are required. One of the hydrogen goes to C, another hydrogen goes to O of aldehyde and it forms RCH2OH. कौन सा alcohol हो गया? Primary alcohol. If it is ketone, then again one of the H goes to C, another H goes to O. It will form RCHOHR. ये कौन सा alcohol हो गया? Secondary alcohol. So aldehyde gives primary alcohol on reduction, ketone gives secondary alcohol on reduction. इसका उल्टा क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का ऑपोजिट ऑक्सीडेशन, गिव्स कीटोन. तो अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल. फॉर एग्जांपल CH3CHO लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डायरेक्ट हाइड्राइड ट्रांसफर होगा. सीधा याद रखने का, CO ग्रुप दिखा, इसको कन्वर्ट कर दो CHOH में, खत्म. तो ये CO ग्रुप है, ऑलरेडी H है, तो CO ग्रुप कन्वर्ट इनटू CHOH. तो ऑलरेडी H था तो CH3 CH2OH. देखो CO ग्रुप है, सीधा इसको कन्वर्ट कर दो CH3 CHOH CH3. इफ यू फाइंड दीज रिड्यूसिंग एजेंट विद अल्डिहाइड एंड कीटोन, रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करने से क्या होता है कि दे आर हाइड्राइड ट्रांसफर. वो फर्स्ट स्टेप में बराबर देखना. ये कार्बोनिल ग्रुप होगा आपका अल्डिहाइड कीटोन का, पोलर है, पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन. सो कार्बन विल फेस पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर H- अटैक करेगा. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल. देन उसके बाद में O पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, H+. हाइड्रोलिसिस करते हैं ना नेक्स्ट स्टेप में H+ का, सीधा बन गया अल्कोहल. मतलब फर्स्ट हाइड्राइड ट्रांसफर, सेकेंड स्टेप प्रोटॉन ट्रांसफर.
हाइड्राइड ट्रांसफर ऑन कार्बन, प्रोटॉन ट्रांसफर ऑन ऑक्सीजन, ये दिमाग में डाल लो रिडक्शन में. हाइड्राइड ट्रांसफर, वन ऑफ द हाइड्रोजन गोज टू कार्बन, अनदर गोज टू ऑक्सीजन. पहले हाइड्राइड ट्रांसफर, देन प्रोटॉन ट्रांसफर इफ यू आर यूजिंग दिस हाइड्राइड टाइप्स ऑफ reducing agent. Okay, next point you remember, as I have discussed, कि lithium aluminum hydride react in presence of non-aqueous media like THF or ether. It reacts violently with water unlike NaBH4. NaBH4 यूज कर सकते हैं, lithium aluminum hydride नहीं, और ये एक्सपेंसिव reagents होते हैं, इनको लैब में ज़्यादा यूज नहीं कर सकते. Plus, second most important point of lithium aluminum hydride and sodium borohydride is that they do not reduce C double bond C. अल्कीन्स के सी डबल बॉन्ड सी को ये टच नहीं करेंगे. मतलब अगर मैंने देखो अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड दिया, देखो इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम 1 2 3 4. सो IUPAC नेम विल बी ब्यूट 2 इन, 1 पे आली है, अंडरस्टूड है, इनाल अल्डिहाइड. अभी इसमें सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया तो H गोज टू दिस C, H माइनस याद है आपको, और H प्लस गोज टू O, सो इट फॉर्म्स CH3 CH डबल बॉन्ड C H CH2OH. देखो अनसैचुरेटेड एल्कोहल मिला 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूट 2 इन 1 ऑल. बट इफ यू यूज निकल, प्लैटिनियम, पैलाडियम ये यूज किया तो हाइड्रोजन दोनों जगह ऐड होगा. इट विल बी एडेड across C double bond O as well as it will be added across C double bond C, so that unsaturated alcohol will be getting converted into a saturated alcohol that will be called as butan 1 all. So ये point याद रखना, lithium aluminum hydride, sodium borohydride, they do not touch C double bond C, they convert C double bond O into CH2OH. टर्शियरी अल्कोहल इससे नहीं मिल सकता ऑब्वियसली. नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन THF. कोई बोलेगा सर इसमें हम लोग सोडियम इथेनॉल क्यों नहीं यूज कर सकते. मतलब सोडियम रिएक्ट कर जाएगा RCOH से, सोडियम एक बेसिक सब्सटेंस है, RCOH एक एसिड है, तो वो सब रिएजेंट यूज नहीं कर सकते इसमें एसिड में. यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड. सिमिलरली NaBH4 भी यूज नहीं करना, सोडियम आ रहा है उसमें. सो व्हाट विल हैपन, सिंपल है, देखो यहाँ से इसको ब्रेक कर दो, यू ब्रेक इट दिस. ओके, तो व्हेन यू ब्रेक दिस OH, वन ऑफ द H गोज टू C, अनदर H गोज टू C, वन ऑफ द H गोज टू O. तो पार्ट क्या हो गया R, ये C किस में कन्वर्ट हो गया CH2OH. तो बेसिकली यहाँ पर भी आपने क्या किया, C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट किया, CHOH में कन्वर्ट किया. सेम यू गेट अ प्राइमरी अल्कोहल, मतलब एसिड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल. देखो मैंने प्रोपियोनिक एसिड लिया है, सो यू गेट अ प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2OH. दिस OH विल बी लॉस्ट विद वाटर, क्योंकि एक H इधर पे आ जाएगा, ये लॉस हो जाएगा. एस्टर, अभी एस्टर को अगर रिड्यूस करना है यू कैन यूज सोडियम इथेनॉल, नो प्रॉब्लम. एस्टर डजंट हैव दैट एसिडिक प्रॉपर्टी, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिंपल है, यहाँ से ब्रेक करा दो C और O का बॉन्ड, ठीक है. नाउ वन ऑफ दी H गोज टू O टू फॉर्म R-OH, ठीक है, प्लस वन ऑफ दी H गोज टू दिस C, अनदर H गोज टू C, अनदर H गोज टू O. So you will get a product RCH2OH. So you get a mixture of alcohol. You get a mixture of alcohol. One can be primary. This is absolutely primary. Of course, this part ये primary में ही convert होगा RCO group. But this part can be primary, can be secondary, or they can be a tertiary. But tertiary के chance कम है. Like मैंने ये example लिया. Example में C2H5, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये पार्ट कन्वर्ट होगा C2H5OH, प्लस ये पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा CH3 CH2OH. सेम अल्कोहल मिल रहा है. अगर यहाँ पर अपने आइसोप्रोपाइल लिया होता तो यहाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलता, डिपेंडिंग अपॉन द अल्काइल ग्रुप्स. देन यू कैन ऑल्सो रिड्यूस एसिड क्लोराइड. In case of acid chloride, you have RCOCl. RCOCl reacts with lithium aluminum hydride और again सोडियम ethanol. ये भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देते हैं. तो एस्टर और एसिड क्लोराइड में सेम रिएजेंट है. यहाँ से ये पार्ट निकाल दो, H गोज टू Cl, तो यहाँ पर HCl, तो HCl निकल गया. नाउ
H goes to, अब C डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट दोगे, CHOH में, तो यू गेट CH2OH, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको R CH2OH. अगेन विच एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल. देखो वही हुआ, वन ऑफ द H गोज टू C, अनदर H गोज टू C. सो यहाँ से 2 H C पे चले जाएंगे एंड वन ऑफ द H गोज टू O. So you get a primary alcohol. Like take acetyl chloride, so it will give you CH3 CH2OH plus HCl. But see properly here in this case, जितने कार्बन एटम आपके रिएक्टेंट में थे इस रिएक्शन में उतने ही कार्बन आपके प्रोडक्ट में मिलेंगे, सेम अमाउंट ऑफ कार्बन एटम्स. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये मैंने शॉर्ट कन्वर्जन्स दी है, जो भी सिखाया है एक बार इसको गो थ्रू कर लेना चार्ट फॉर्म में. You get all the ideas about the reducing agent, what are the products they will form in the reactions. Okay, and these are the functional group. Aldehyde है तो primary alcohol, ketone gives secondary alcohol, acid gives primary, chloride gives primary, ester gives mixture of primary and other secondary tertiary भी हो सकता है. Alkenes तो alkane बना सकता है ये catalyst से. Anhydride can also give a primary alcohol. अगर आप इसको यहाँ से break कर दोगे, H add कर दोगे तो it can give a primary alcohol and acid. ओके, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लोग ने डिस्कस किया.